Hello guys, welcome to our new campaign for Periodontics Easy Notes and Easy Understanding. We are free dental guide providing free dental education for all the students who are preparing for final year BDS. These classes will be helpful to you for NEET MDS as well as and all for all the upcoming exams. In the previous lectures, we have discussed many things about gingiva and periodontal ligament. Questions can be asked from these topics, but the thing is, you have to make sure that you have to write the content in your notes in which you can finish it within 7 to 10 minutes. For example, a 3-mark question is asked. We have to write accordingly. In your exam, questions of 7 mark as well as 5 mark will be asked. You have to write according to that. It is not that you will be writing one question for 1 hour, another for half hour. You have to judiciously spend the time for writing a question as answer. Now, in the previous lecture, we have discussed about periodontal ligament fibers. We will go through its quick revision. Periodontal ligament, there are 5 principal fibers which are mainly composed of collagen. In principal fibers, we have alveolar crest fibers, transeptal fibers, horizontal fibers, oblique fibers, apical fibers. The main function of oblique fibers is to transmit the force from the occlusion or occlusal forces to the alveolar bone. Okay, so in this way, in the previous lecture, we have discussed about each and every role of the fibers, its origin, its insertion, and what is special about that. In today's lecture, we will discuss about cementum. Gingiva and periodontal is clear for you right now. One question is sure from that. In your history for practical examination, you have to write about gingiva also. What is the color? What is the consistency? What is the appearance? Stippling is there or not? So we have discussed that stippling is an orange peel appearance. Okay. Dotted appearance will be there on the gingiva, and afterwards, when you wipe this gingiva with the cotton, you can see that it is like orange peel appearance. So that stippling presence means that gingiva is healthy, and loss of stippling, when stippling is absent, it means that inflammation or infection has started. So in this way, you have to recall the previous topics, and we will move to the next topic or new topic for today, that is cementum. Guys, we are providing free education. These videos you can share with your guys. For those who are reading for first time, it is very easy for them. Those who have read first time and they are planning for revision, it's the best platform for them. And those students who are bunkers or they have not gone to college or they have less time or they are repeaters, we make sure that this content is easy for them. They find it very easy and they will pass it by watching our lectures. Watching these lectures, you gain some knowledge where you can apply all this knowledge in the practical exam also. Let all the students mark their attendance. Afterwards, we will start our lecture. So today's topic, we will discuss about cementum, gingiva, PDL, cementum, and alveolar bone. Okay, these 4 are the pillar of a basis of the support of the tooth. So we have to go through all the topics. We will start with cementum today. Okay, what is cementum? It's a mineralized structure, okay, which is on the root surface. Okay, where you will find this? On the root surface. On the crown surface, you find enamel. Okay,
On the root surface, you find cementum. Okay, so between these there will be cementoenamel junction. Okay, so you can see that this lining, violet lining, is covering the root. Okay, so we can see that it is called cementum. Okay, what is cementum? It's a covering of the root. Like the crown is covered by enamel, we have cementum on the root. Okay, what is its thickness? Every thickness is 150 to 200 microns meter. It is thick at the apex. Here it will be thick, and thin at the CEJ. Here it will be thin. Okay, and what about PDL? It is like hourglass shape. In between, we find that it is narrow, and in the periphery, we find that it is wide. Okay, so all the features of its thickness are given here, where it is thin, where it is thick. In case of PDL, where it is, what is its structure? It is like hourglass shape, thin in the middle and thick in the periphery. Now classification of cementum. Okay, it is divided into two parts, acellular and cellular. Okay, now where is acellular found? It is found in cervical third. Okay, now I will explain you what are the parts of tooth. See, when you classify a root portion starting from cementoenamel junction to apex, okay, so this portion is called cervical of cementum. Okay, this is called middle, and this one is called apical. Okay, you're getting me? Three parts on the root surface. The upper part is called cervical, this is called middle, and this is called apical. Now they will explain you that this acellular cementum will be found on cervical third. Okay, and cellular will be found on middle and apical third. This is the first difference. Okay, you can tell that it is location. Okay, now classification of fibers. There are two types of fibers in cementum, intrinsic and extrinsic. Okay, now sometimes we have studied about sharpish fibers in the previous lecture. Those fibers connecting the PDL to this cementum are called sharpish fibers. Now fibers are classified into five types: acellular afibrillar, acellular extrinsic fibrillar, cellular mixed, cellular intrinsic, and intermediate cementum. So this is somewhat easy if you understand this topic. See, they are found in coronal portion. So we have studied that in the coronal portion, that is in the cervical, we have acellular fibers. So acellular, okay, is the coronal portion. And when we come to apex or middle, we have cellular. So it is easy for you to remember five types of fibers. Now CEJ, okay, cementoenamel junction. There are three types joint is made between cementum and enamel. Okay, first one is overlapping cementum
overlaps enamel. Second is both are at the border, and third one is there is gap, root is exposed. Okay. Now cementodentinal junction. Okay, where it will be found? It will be found at the apex. Okay, there we can have that dentin is somewhat exposed, and there will be the border for dentin and cementum. So that is called cementodentinal junction. I will explain you in figure where it is exactly. See, this is red color is dentin. Okay, red is dentin. So this junction where cementum and dentin meet is called cementodentinal junction. Okay, this is called cementoenamel junction. Okay, so in primary teeth we see that cementodentinal junction is scalloped. In case of permanent teeth we see that it is smooth and 2 to 3 micrometer wide. ठीक है. Our obturating material, what is this? I will explain you. हम जब आरसीटी करते हैं ना तो क्या होता है, टूथ का हमको यहां तक ऑब्जर्वेशन करना होता है. ठीक है, तो ये बॉर्डर जो है ना वहां तक हमको ऑब्जर्वेशन करना है सीमेंटोडेंटिनल जंक्शन. तो ऑब्जर्वेटिंग मटेरियल वहां एंड होगा सीमेंटोडेंटिनल जंक्शन. अब एजिंग, ठीक है, एजिंग के का साथ क्या होगा, तो इरेगुलर लाइंस बन जाएगी सीमेंटम की. ठीक है, ग्रोथ होगी एपेकल रीजन में, और कभी कभार ग्रोथ भी होगी और कभी कभार वो रिजॉर्ब की होगा, रिजॉर्ब डिपॉजिट होगा, रिजॉर्ब होगा. इसलिए कभी कभार सीमेंटम में रिवर्सल लाइंस पाई जाती. ठीक है, अब थिकर होगा डिस्टल सरफेस पर और थिन होगा मीजियल सरफेस पर. तो अभी आप हमारी बात एक समझिए, ये थिक लिखा है, थिन लिखा है, अलग अलग लिखा होगा तो कभी कभार ये मिक्स हो जाएगा. तो इतना ज्यादा भी रटना नहीं है. आपको क्या करना है, आपको अगर ऐसा लगता है कि भूल गए हो तो आप कुछ भी लिख सकते हो कि यहाँ थिन है, ठीक है. इतना पेपर में ज्यादा डीप में स्टडी करने वाले हैं नहीं. तो सीमेंटम का क्वेश्चन पूरा हुआ. ठीक है, अब कभी कभार उसकी नर्व सप्लाई आती है, ब्लड सप्लाई आती है, तो कोई नर्व सप्लाई है नहीं उसकी, कोई ब्लड सप्लाई भी नहीं है, इसलिए उसको डेफिनेशन जो होगी उसमें लिखेगा कि वो कोई नर्व है नहीं, कोई ब्लड सप्लाई भी नहीं है, खाली वो मिनरलाइज्ड स्ट्रक्चर है. ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोजर प्रोसेस. यहां तक कोई आपको डाउट है तो हमको बताइए, वरना हम आगे के टॉपिक में जाते हैं. ठीक है, 2 मिनट में डाउट मुझे बताइए कोई हो तो. तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, एलोजर प्रोसेस. ठीक है, तो एलोजर प्रोसेस है क्या, ये है टूथ हमारा, ये जो मैंने लिखा है ना, ये हमारा
टूथ है, तो टूथ किसके अंदर होगा? वो बोन के अंदर होगा। ठीक है, तो इसके बारे में हमको स्टडी करना है, क्योंकि जो भी हमने यहाँ तक पढ़ा, जिंजाइवा, पीडीएल, सीमेंटम और एलुलर बोन, वो सब टूथ का फाउंडेशन स्ट्रक्चर है, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है। तो अभी 3 हमने कर लिए, ये अभी चौथा है एलुलर प्रोसेस। ठीक है, तो एलुलर प्रोसेस क्या है? ठीक है, तो नीचे वाला बॉन, और बॉन के बारे में अभी हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये लोग ऐसा बता रहे हैं कि एक लेमिना ड्यूरा होता है यहाँ टूथ और बॉन के बीच। ठीक है, अब बॉन के बारे में समझा रहे हैं। ऊपर का जो बॉन होगा वो कॉर्टिकल होगा, और नीचे कॉम्पैक्ट बॉन होगा, जो अलग बॉन प्रॉपर बोलते हैं। ठीक है, तो वो कैंसलस भी हो सकता है। ठीक है, अंदर का जो स्पॉन्जी बॉन होगा ना, वो वाला। ठीक है, तो ये एलुलर बॉन जो प्रॉपर होगा वो हम बोलेंगे कि ये कॉम्पैक्ट वाला बॉन है। दो दांत के बीच में इंटरडेंटल सेप्टम होता है। ठीक है, वहां पे ये एलुलर बॉन पाया जाएगा। ठीक है, ये जो है ना बॉन, एलुलर बॉन, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। दांत है, ये भी एलुलर बॉन है। यहाँ पे अभी ये सब एलुलर बॉन की प्रॉपर्टीज है, अभी हम ये पढ़ने वाले हैं। 2 टाइप्स है एलुलर बॉन्ड के, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ठीक है, इसका मेनली टाइप्स, कंपोजिशन, कोलेजन है फर्स्ट टाइप, उसमें 90% है, और इनऑर्गेनिक में क्या होगा? कैल्शियम और फॉस्फोरस। ठीक है, अब जब फेनिस्ट्रेशन और डेहिसेंस, ठीक है, ये समझिए, जब बॉन एक्सपोज हो जाएगा टूथ के नीचे, ये टूथ है, यहाँ गम है, बहुत सारे पेशेंट में नीचे वाला टूथ जो बोन है टूथ के ऊपर का, वो चला जाएगा और टूथ एक्सपोज हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं फेनिस्ट्रेशन। फेनिस्ट्रेशन को आप कैसे याद रखोगे? तो आपको एक विंडो जैसा दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, और पूरे का पूरा दरवाजा ही दिख जाए, दांत के नीचे पूरे का पूरा हो जाए एक्सपोज रूट, उसको बोलते हैं डेहिसेंस। ठीक है, ये कब होता है? पेशेंट को गम्स की बीमारी हो, पेरियोडोंटाइटिस हो, तब ये मसूड़े हैं गम्स वो उतर जाएंगे, रिसेशन हो जाएंगे, तब आपको पूरे का पूरा रूट दिखेगा। इसको बोलते हैं हम डेहिसेंस। ठीक है, अब एजिंग, एजिंग के साथ जिंजाइवा पर क्या क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, एजिंग एंड जिंजाइवा। तो एपिथेलियम में क्या आएगा? विड्थ एट ए जिंजाइवा की बढ़ेगी, स्टिपलिंग कम होगी, केराटिनाइजेशन कम होगा, एपिथेलियम कम होगा, लूज होगा, और कनेक्टिव टिश्यू में स्ट्रेंथ बढ़ेगी एज के साथ। फिर डेंचरिंग टेम्परेचर ऑफ कोलेजन वो भी बढ़ेगा। फिर सोल्यूबल से इनसोल्यूबल कन्वर्जन जो है, रेट कन्वर्जन, वो भी बढ़ेगा, और कोलेजन सिंथेसिस कम होगी। तो ये क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, ये इतनी चीज रखनी है याद, कौन कौन सी चीज अच्छी होगी, कौन कौन सी चीज खराब होगी। ठीक है, अब पीडीएल के साथ एजिंग में क्या क्या होता है? तो सोचो, इलास्टिक फाइबर से ना वो ज्यादा बढ़ेंगे, फाइब्रोब्लास्ट कम होंगे। फाइब्रोब्लास्ट का मतलब क्या है? जो ग्रोथ पोटेंशियल वाले सेल्स है वो कम होते जाएंगे। जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, तो हमारी ग्रोथ कम होती है, बॉडी की हेल्थ थोड़ी वीक हो जाती है। तो ऐसे केस में फाइब्रोब्लास्ट कम होंगे, कनेक्टिव टिश्यू सेल्स कम, ऑर्गेनिक मैट्रिक्स कम होगा, O2 कंजप्शन कम होगा। ठीक है, तो आपको ये क्या है, 3-4 चीज याद रख लेनी है। अगर आप ये भूल जाते हो, चलो मानो कि आपने भूल लिया,
आपको बोला है कि एजिंग के साथ पेरिडोंटल लिगामेंट का क्या लेना देना है, तो आपको सब खराब खराब बात बोलनी है। पहले बोलना है कि पेरिडोंटल लिगामेंट का फंक्शन कमजोर हो जाएगा, वो वीक हो जाएगा, उसकी कंसिस्टेंसी खराब हो जाएगी, उसका फंक्शन कम हो जाएगा, उसका डायमेंशन कम हो जाएगा, उसको दूध को वो अच्छी तरह से सपोर्ट नहीं कर पाएगा, सारे फाइबर से वो टूट जाएंगे, फाइबर्स के नंबर कम हो जाएंगे। तो ऐसे आपको बोलना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि जो यहाँ लिखा है ना वो रटना है। फाइनल ईयर में ये कभी भी भूल मत करना। ये तो क्या है, थोड़े थोड़े पॉइंट्स आपको दिए हैं कि आप ये सब बना सकते हो। ठीक है, आप कलर चेंज भी लिख दो, डायमेंशनल चेंज भी लिख दो, फिर ऐसे लिख दो कि वो जो फोर्स ट्रांसमिशन होता है वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, सीमेंटम में क्या आएगा, सीमेंटम की विड्थ बढ़ जाएगी और परमिएबिलिटी कम हो जाएगी। यहाँ तो दो ही पॉइंट दिए हैं, आप 6-7 पॉइंट ज्यादा भी बना के देख सकते हो। ठीक है, अब पेरिडोंटल पैथोलॉजी। तो पेरिडोंटल पैथोलॉजी में कुछ नहीं है, मैं आपको एक बात समझा देता हूँ। देखो, ये ब्लड वेसल है। ठीक है, तो इसकी परमिएबिलिटी जो होती है, यहाँ से कोई चीज अंदर आती है, उसको बोलते हैं परमिएबिलिटी। तो जब पेशेंट को इन्फ्लेमेशन होगा या पेशेंट के मसूड़े में कोई दिक्कत होगी, पेशेंट ठीक से ब्रश नहीं करता होगा, खाना इरिटेट करता होगा, टोबे को इरिटेट करता होगा, तो ये इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। ठीक है, इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन में हमने आपको पढ़ाया था, सेलुलर चेंजेस आते हैं और वास्कुलर चेंजेस आते हैं। सेल्स जो होंगे, पीएमएनएस, जो इन्फ्लेमेटरी के सेल्स, जो मीडिएटर्स होंगे, वो सब इन्फ्लेमेशन को एक्टिवेट कर देगा मैकेनिज्म। और वास्कुलर चेंजेस में क्या आएगा, परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी ब्लड वेसल की। जहां पे चोट लगी है ना, वहां की ब्लड वेसल्स की परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी। तो क्या होगा, तो वहां पे स्वेलिंग हो जाएगा, रेडनेस हो जाएगी। ठीक है, तो ये ऊपर वाला जो डायग्राम ड्रॉ करके दिया है नोट्स वालों ने, वो यही है कि ब्लड वेसल में क्या होगा, उसके अंदर घुस जाएंगे। ठीक है, ये अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं, फिर वो नीचे कोई बुलाएगा तो यहाँ से बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्या, न्यूट्रोफिल। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल क्या है, वो एक मीडिएटर ऑफ इन्फ्लेमेशन है। ठीक है, फिर मास्ट सेल है ना, वो अलर्ट करेगा कि ब्लड वेसल को बोलेगा कि भाई आप परमिएबिलिटी बढ़ाओ और अच्छे अच्छे सेल्स भेजो जो इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करें। ठीक है, ऐसे। यहाँ पे ऐसा समझाया है कि बैक्टीरिया जो है ना, कोई इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लेमेशन, कोई खराब चीज है बॉडी की, वो शाहरुख खान है, बैक्टीरिया। फिर वो क्या करेगा, वो आएगा ना तो अंजलि को बुलाएगा, कुछ कुछ होता है में जो अंजलि थी ना, वो। तो अंजलि हमारी मास्ट सेल्स है, तो मास्ट सेल्स क्या करेगी, ठीक है, या वार्डन है, वो सबको बुलाएगी कि चलो बाहर आ जाओ बच्चों, बाहर आ जाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, ऐसे। तो ऐसे जो सारे ब्लड के अंदर न्यूट्रोफिल है, जो प्रोटेक्टिव सेल्स है, वो बाहर आ जाएंगे और वो इंफ्लेमेशन को एक्टिवेट कर देंगे, फिर उसको शाहरुख खान को भगा देंगे। ठीक है, ये सब इंफ्लेमेशन में होता है। ठीक है, ये हमने सेकेंड ईयर में पढ़ लिया था, इन्फ्लेमेशन में क्या होता है, वास्कुलर और सेलुलर चेंजेस होता है, यहाँ उतना समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आता है, बोले पानी की बोतल देंगे ठंडी। फिर आता है पेरिडोंटल डिसीज। क्या होता है डिसीज में, ये सब समझना है।